देखो हेडिंग लिखो, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, है ना। पिछला क्लास में मैटर के बारे में बताए थे। देखो मैटर, देखो विच ने एनीथिंग लिखो, एनीथिंग, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई में जगह घेरना, OCCUPY, anything which occupies space, anything which occupies space and which have some mass, and मत लिखो कॉमा लिखो, anything which occupies space, comma, which have some mass, which have some mass, or which can be seen or experienced by, or which can be देखा, anything which can occupy space या which occupies space, which have some mass and which can be seen or experienced by, and which and which can be seen or experienced by our sense organs, our sense organ is called matter, is called matter. Example लिखो, table, chair, table, chair, air, water, etc. उसमें वो सब्सटेंस का परिभाषा लिखा हुआ है, सब्सटेंस का परिभाषा लिखे रहे तो सब्सटेंस, SUBSTANC, सब्सटेंस में पदार्थ, मैटर में पदार्थ होता है, सब्सटेंस में पदार्थ होता है, दोनों एक तरह से सेम ही चीज है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंट दिया है। तो सब्सटेंस का परिभाषा लिखो, A substance is a kind of matter. A substance is a kind of matter. Kind of matter that cannot be separated. That cannot be separated. That cannot be separated into other kind of matter. Cannot be separated into other kind of matter. Separated into other kind of matter by any physical process. By any physical process is called substance. Example लिखो, sugar process, यहाँ लिखो sugar, है ना। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड मतलब देखो साल्ट, कॉमन साल्ट को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। NaCl फर्क करता है। लिया देखो, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर
इसको मेटर ऑफ क्या फिर से बोलो? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ very very teeny particles. Matter is made up of very very teeny particles. And these particles are so small. And these particles are so small that it cannot be seen with our open eyes. Like for example, a small raindrops, छोटा वर्षा के बूंदा देखो ना कितना छोटा. A small raindrops contain 10 to power 21 particles. 10 to power 21. 10 पे पावर 21. A small raindrops contain 10 to power 21 particles. देखो characteristic of matter. Characteristic of matter. Characteristic of matter. Characteristic of matter. पदार्थों का गुण नहीं जानते हो तो लिख लो. देखो सबसे पहले लिखो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्या लिखी थी मैटर नहीं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर लिखाई दिया है ना. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स जो पार्टिकल से मिलकर बना होता है ना उस पार्टिकल का गुण या पार्टिकल का लक्षण. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पहला द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज वेरी वेरी स्मॉल. दूसरा देयर इज ए गैप बिटवीन there is a gap there is a gap between gap or a space there is a gap or a space between particles of matter. Between particles of matter. तीसरा the particles of matter are continuously moving. The particles of matter are continuously moving. The particles of matter are continuously moving. तीसरा the particle there is an intermolecular force. There is an intermolecular force of attraction. There is an intermolecular force of attraction between the particles of matter. Intermolecular force of attraction between particles of matter. Particles of matter. So particles of matter attract each other. So particles of matter
attract each other, attract each other. तो ध्यान देगा अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर उधर। हाँ, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है। इतना छोटा होता है कि तुम इसको अगर चेक करना है, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे कि हम चीनी ले लेंगे। क्या ले लेंगे? चीनी ले लिए। चीनी अभी हमको दिख रहा है, चीनी बाहर हम चम्मच में लिए तो दिख रहा है, लेकिन वो चीनी जो है तुम पानी में डाल दो और घोलते जाओ घोलते जाओ घोलते जाओ, उसके बाद पानी में चीनी खोजो, नहीं मिलेगा, है ना। मतलब ये पार्टिकल इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वो हमारे आंखों से दिख नहीं सकता है ना। दूसरा जो मैं बताया कि पार्टिकल ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, ये जो मैटर जो पार्टिकल से मिलकर बना होता है उसके बीच में क्या होता है? खाली जगह होता है। अभी खाली जगह भी इस एग्जाम्पल से तुम चेक कर सकते हो। जैसे हम चीनी लिए, पानी था, पानी में चीनी डाले, चीनी खत्म हो गया, तो चीनी गया कहाँ? पानी में जगह होगा था ना। पानी जिस पार्टिकल से मिलकर बना है, जैसे आगे जाकर पढ़ाई होगा, पानी का सूत्र होता है H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर पानी का निर्माण करता है। तो H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, तो एक H2O मॉलिक्यूल से दूसरे H2O के मिलकर जगह होगा, उस जगह में जाकर चीनी का पार्टिकल घुस गया, है ना। और अगर जगह नहीं रहता तो नहीं घुसता। जैसे कि ये डस्टर है और ये बेंच है, इसमें तो कितना घुलाओ नहीं घुलेगा, ताकि इस पार्टिकल के बीच में जगह नहीं होता है ना। तो इसके बारे में कल हम लिखवा देंगे कि ये जो पार्टिकल जो के बीच में गैप होता है, ये गैप सॉलिड में कम होता है ना के बराबर, लिक्विड, है ना। लिक्विड में गैप पार्टिकल के बीच में ज़्यादा होता है और गैस के पार्टिकल के बीच में ये गैप बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे जाके पढ़ाएंगे डिफ्यूजन हिंदी में कहते हैं मिश्रण, हाँ, इंटरमिक्सिंग। जैसे पानी में दूध मिला दिए या दूध में पानी मिला दो, एकदम आसानी से मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? कहीं तो दोनों के बीच में स्पेस है, पानी डाले मिल गया, मिक्स हो गया। लेकिन इसमें सॉलिड में नहीं मिलता है ना। गैस में एक गैस में दूसरा गैस आसानी से मिक्स हो जाता है। क्यों मिक्स हो जाता है? दोनों के बीच में गैप होता है, समझ में आया? तो ये जो स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में, ये सॉलिड में नेग्लिजिबल, लिक्विड में सॉलिड से ज़्यादा और गैस में पार्टिकल के बीच में गैप सबसे ज़्यादा। एनी प्रॉब्लम? दूसरा मैंने लिखाया कि द पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग, मैटर का जो पार्टिकल होते हैं लगातार मूव करते रहते हैं, है ना। इसका एग्जांपल ए बी, इसमें भी तुमको 3 केसेज आएगी, आगे तुमको बताएंगे। मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार से मैटर 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड, कल हम इसके बारे में चर्चा करेंगे डिटेल रूप में। तो ये जो मोशन होता है पार्टिकल का, ये सॉलिड में नहीं होता है। ये देखो डस्टर में इधर छोड़ दिया, इसी जगह है, जा नहीं रहा है, ताकि इसके पार्टिकल के बीच में मोशन, लेकिन लिक्विड में ये मोशन होता है। इसलिए लिक्विड गिराओगे तो अपने आप उसका वो बह जाएगा, आगे फ्लो कर जाएगा, फ्लो कर जाता है ना। गैस भी कहीं भी तुमको उसको ओपन एयर में छोड़ोगे तो इधर उधर रिलीज हो जाएगा ना, ताकि उसके पार्टिकल के बीच में क्या है? कॉन्टिन्यूअसली मोशन, मूविंग स्टेट में है। पूछ देगा तुमसे कि मोशन क्यों है, तो बोलेंगे, कोई पूछ देगा तुमको कि भाई द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, बोलेंगे देयर इज ए काइनेटिक एनर्जी, है ना। उसके पार्टिकल के बीच में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है। कोई काइनेटिक एनर्जी जो पार्टिकल के बीच में होता है, इसी के द्वारा कारण वो क्या करते हैं? कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। ये जो सॉलिड के पार्टिकल में नहीं होता है, लिक्विड के पार्टिकल में होता है, और गैसेस के पार्टिकल में ये काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तीसरा मैंने कब से बताया, देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये उल्टा हो जाएगा जी। सॉलिड के पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो, समझा? ये उसके उल्टा हो गया। उस समय लिक्विड में ज़्यादा हो रहा था ना, लेकिन इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं, ये सॉलिड में क्या होता है? ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम, और गैस में तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। और नहीं होने के कारण ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है और लगातार मूव करते रहता है। तो इसके बारे में कल थोड़ा सा हम दिखा देंगे और आगे हम चलेंगे, चर्चा करेंगे फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में, और उसके बारे में अलग अलग हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे।